Subhas, I just want to inform you that I did that actually, but it couldn't work. I don't know what's the issue. So on my tab, it is showing it is already live, but I can check on the YouTube, it's not there. So better I will do one thing. I will record the session over here, and then we can get it uploaded over there. Okay? Yeah, yeah. Shimala, now it's showing live. No, it's not there. Yeah, it's there now. Yeah, it's now in live. Okay. Okay, thank you. Okay. Really sorry everyone for time and again this thing is happening. So sorry. So this thing is clear, right? चलो आगे बढ़ते हैं. So, specific heat capacity. We have we studied what small s we studied, capital S we studied. Now we are going to read molar specific heat capacity. So this is what this is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree. So if we have 1 mole of substance and we need to raise its temperature by 1 degree, then amount of heat given will be equal to molar specific heat capacity. So from heat capacity, we can get molar specific heat capacity. How? Just see here. What was that? This is the molar specific heat capacity. Done it? And this is your heat capacity. That is Q divided by delta T. So इसको अगर moles number of moles से divide कर दो, mu है. So heat given per unit mole per unit temperature rise is your what? Is your molar specific heat capacity. Done. That is getting indicated by capital C. So here C will depend on what? Again, nature of substance and temperature of substance. But to good variable temperature, it will be constant. But at high temperature, it changes. Okay. Condition under which heat is getting supplied. Again, molar heat capacity, when we will read for gases, it also depends on if we are supplying heat at constant volume or constant pressure. So that we will read in detail ahead. But for now, you just have to keep this in mind. Molar specific heat capacity depends on nature of substance, temperature of substance, and also condition under which heat is getting supplied. डन है. नाउ आई जस्ट वांट यू टू डू वन थिंग हियर. जैसे हमने यहाँ पे ये तो देख लिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी. सो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन स्मॉल s and c? What will be the relation between these two? Then small s means specific heat capacity and molar specific heat capacity. So if you see carefully, small s was written as heat getting supplied per unit mass per unit temperature rise. This was right. Now m is what? Mass. So if we write mole as, we can write mole as mass by molar mass, है ना? So mass can be written as mu into molar mass. Done. So small s can be written as q by small m को क्या लिख सकते हो? Molar mass into mu. So mu into molar mass delta t. So q by mu delta t is c. So s is equal to what? C by capital M. Capital M is what? Molar mass. This is what? Molar mass. So if in question you are asked relation between a specific heat capacity, molar specific heat capacity or heat capacity, you can calculate any of this, right? This relation we can easily establish. Done it? So small s equal to C by capital M. Clear है? Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? किसी को कोई डाउट है? ओके, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. सो टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कौन सा है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दैट वी विल रीड इन डिटेल फॉर गैसेस later. Comparison between CP and CV, but I would love to do the comparison. जैसे यहाँ पे देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहने का मतलब क्या है? सपोज एक गैसेस कंटेनर ले लो, ठीक है, एंड यू आर कीपिंग इट एट कांस्टेंट प्रेशर. इस पे ये कौन सा कंडीशन है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है. डन. एंड देन यू आर गिविंग इट हीट. डन. सो
In this case, T will be written as Cp, and you will write heat getting uh, provided divided by per unit temperature rise per unit mole. This is Cp. And if there is a container, you want to, there is gas inside, and you are giving it heat such that its temperature will increase. Condition is what? Volume will remain constant. So here C will be written as Cv, and Q will be different here. So Q dash mu delta T. So this is how we write Cp and Cv. Done. Now if you want to do the comparison, जैसे यहाँ पे देखो first law of thermodynamics को use करके we can do the comparison, because in thermodynamics we are dealing with gases basically. So let's move on to that. First law of thermodynamics क्या था? Delta Q, heat being given, was equal to work done plus delta U. सबको याद है ये, है ना? Now let's talk about the first condition, Cp. Cp का मतलब at constant pressure we are giving heat. So there is a container, pressure will remain constant, and you are giving it heat. You are giving it heat. So if delta Q1 ले लेते हैं, ठीक है? So delta Q1 we are giving at constant pressure. What will happen to this heat? What gas will do after taking this much heat? So it will do work, some work it will do, and some heat it will utilize to change its internal energy. So here delta Q1 will be equal to W plus delta U, and Cp will be written as delta Q1 by mu delta T. ठीक है, डन है। तो ये तो काफी सिंपल दिखा अभी, है ना? सारा ही सिंपल होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इजी। ओके, सेकंड केस चलते हैं, सीवी। सो सीवी में क्या किया हमने? एक कंटेनर ऐसे लिया, गैस है इसमें, डन है, और यहाँ पे पिस्टन रखा है। पिस्टन को रिजिडली रखा है सच दैट यहाँ से जब हम हीट दे तो ये पिस्टन मूव ना करे, यानी कि वॉल्यूम क्या रखना है हमें? कांस्टेंट, है ना? वॉल्यूम है कांस्टेंट। अब सपोज कर लो यहाँ पे मैंने डेल्टा Q2 हीट दिया, इस हीट का यूटिलाइजेशन क्या क्या होगा? सो डेल्टा Q2 किस में जाएगा बताओ? वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखे हो? पीडीवी। वर्क डन क्या है? पीडीवी। सो वॉल्यूम तो चेंज होना ही चाहिए वर्क डन के लिए। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारा डीवी जीरो है, तो वर्क डन भी क्या है? जीरो। यानी कि यहाँ पे वर्क डन जीरो है लड्डू। प्लस क्या लिखोगे? डेल्टा यू। यानी कि यहाँ पे सारा का सारा हीट एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में जा रहा है। और डेल्टा Q1, जैसे यहाँ भी हमने टेम्परेचर यूनिट से इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हीट वर्क करने में चला जाएगा और जो बचेगा वो 1 डिग्री राइज करने में जाएगा, राइट? यहाँ पे जो भी हीट दे रहे हो, ऑल विल गो इनटू इंक्रीजिंग द internal energy. I have told you internal energy depends only on temperature. I have told you in the first lecture, है ना? So it depends only on temperature. It means whatever heat we are giving in the second case, all heat is getting utilized in increasing internal energy. That is in increasing temperature. So CV को अगर आप लिखोगे delta Q2 by mu delta T. So here basically to increase the temperature by delta T, you have to supply less amount of energy. And here to increase the temperature by delta T, you have to supply more amount of energy, because here some energy will also get utilized in doing work. So Cp is greater than Cv. ठीक है, Cp is greater than Cv. Done है? Because here you can clearly see delta Q1 is greater than delta Q. Done है? Now greater by what amount, how much, that we will see later. तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होगे, Cp माइनस Cv R होता है। सो नाउ दिस इज आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो आइडियल गैस होता क्या है। सो आइडियल गैस ऐसा गैस जिसके एटम्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो। गैस का मतलब क्या होता है? जिसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। और आइडियल गैस वो गैसेस होते हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं। आई मीन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को नहीं जानता। मीन्स दे आर वेरी फार अपार्ट, they are very far apart such that they are not able to interact with each other. It means one hydrogen atom is not applying any interatomic forces on the another, so there is no interaction happening. Then they are living as a as an isolated species, right? Each individual hydrogen.
So this is ideal gas. Ideal gas का मतलब no interaction. Now what is the ideal gas equation? So ideal gas equation is PV equal to nRT. Done. So at any temperature T, suppose कर लो there is a container in which there is a gas enclosed, so there will be pressure of that container or that gas. It will have certain temperature. There will be certain number of moles of gas present, and it will have certain volume. So how we can relate all this thermodynamic state? So what is the way to relate? So relation क्या होता है? PV equal to nRT, where R is what? Constant, gas constant. ठीक है? So its value is how much? 8.314 with proper SI unit. ठीक है? So this is your value. Done it? And this ideal gas equation we will be using. So अभी हम start करने जा रहे हैं thermodynamic process. वहां पे हमें first law of thermodynamics का use आएगा, ideal gas equation का use आएगा, area under PV curve का use आएगा, and also somewhere we will be using specific heat capacity वाला concept. ठीक है? So let's start with that. Okay. चलो. ओके. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तुम्हें पता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है? मैंने बताया था कि ये पी वी डायग्राम ले लो. कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, उसका एक स्टेट होता है ना? तो स्टेट वन ले लो जहां पे उसका प्रेशर पी है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. अगर इस कंटेनर को, गैसियस कंटेनर को अगर सेकेंड स्टेट पे जाना है जहां पे कि प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, वी विल गिव इट सम एनर्जी, वी विल डू समथिंग बाय व्हिच इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2, राइट? सो द प्रोसेस, different processes through which we can move from 1 to 2 is called thermodynamic process, and there are so many kinds of processes that we are going to read again. फर्स्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये प्रोसेस दो तरह का हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस अननेचुरल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल है. देन रिवर्सिबल प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होता है. दिस इज सेम एज की इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी लॉसेस होते हैं. देन जैसे तुम, जैसे यहाँ पे देख लो, वो जैसे तुम्हारे पास एक बलून है जिसमें हवा भरा हुआ है, ऑल ऑफ सडन, जैसे एक बढ़िया एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे टायर ले लो. टायर, यू आर ड्राइविंग द व्हीकल एंड ऑल व्हीकल हैज सम टायर्स, राइट? वन टू, वन टायर का व्हीकल होता है क्या? नहीं होता, टू होते हैं ना मिनिमम, टू फोर. देन तुम ड्राइव कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन वन ऑफ द टायर्स गॉट बर्स्ट. सो व्हाट विल हैपन? क्या होता क्या है, पता कैसे चलता है? ऑल ऑफ सडन क्या होता है, इस टायर के अंदर काफी ज्यादा हवा था, है ना, ये बर्स्ट करता है तो एक साउंड आता है. सो दिस बर्स्टिंग ऑफ टायर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. टायर तुम्हारा बर्स्ट कर गया, वो ऑटोमेटिक ऐसा तो नहीं होगा कि वो हवा वापस से टायर में आ जाए और फिर से टायर ठीक हो जाए. इट डजंट गो लाइक दिस, राइट? सो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सडन प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली होता है. डन. और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, जैसे साउंड एनर्जी जनरेट हुआ. सो गैस के अंदर जो भी एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हुआ? साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ. सो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, राइट? इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो इरिवर्सिबल अननेचुरल था, रिवर्सिबल, सॉरी, इरिवर्सिबल नेचुरल था. नेचुरल कहने का मतलब जो अपने आप होता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड रिवर्सिबल विच इज not natural, you need to do it, and this is quasi static process as I discussed, very slow process. So अभी जो भी हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ना आसान नहीं है, उसको नहीं पढ़ सकते. क्यों? क्योंकि देखो, जब जब हमारी व्हीकल, जब हम कार को ड्राइव कर रहे थे, टायर अच्छा था, तो दे मस्ट बी सर्टेन प्रेशर इनसाइड द टायर, है ना? कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रहा होगा, कुछ टेम्परेचर रहा होगा. लेकिन जब ये टायर बर्स्ट कर गया, ठीक होने और बर्स्ट होने के बीच में उस गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, इट कैनॉट बी डिफाइंड. इट्स वेरी मच डिफिकल्ट. सो वी कैनॉट रीड इरिवर्सिबल प्रोसेस. इफ यू आर गोइंग टू रीड, वी विल रीड रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू रीड रिवर्सिबल प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस भी आइसोटोप. तो सारे ही प्रोसेस में मैं कुछ कॉमन चीजें करूंगी. सबसे पहला मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगी. ठीक है? सारे ही प्रोसेस में ये सारी चीजें आइडियल, देखो मेरा दिमाग कम काम कर रहा है.
है ना, क्या क्या लिख रही हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पहले ये करने वाले हैं, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, पीवी कर्व को देखेंगे। डन। इसको कर लेने के बाद वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, और फोर्थ प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज लेफ्ट, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी कर्व, work done. There was one thing in my mind, it slipped just now. So let's start first. उसके बाद देखते हैं क्या बच गया था। ठीक है, सो आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले देखो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जो है तुम्हारा वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब एक काम करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। सो पीवी इक्वल टू क्या लिखोगे, एन आर टी। डन है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, पी प्रेशर क्या हो जाएगा, एन, एन इज नंबर ऑफ मोल, एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, सो एन तो कांस्टेंट रहेगा। सो एन लिखो, आर कांस्टेंट है, बाई वी टी। सो फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस, सपोज कर लो इस कंटेनर में कुछ गैस है, सर्टेन मोल ऑफ गैस है, एन मोल है। डन, और इसमें प्रोसेस आइसोकोरिक हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर विल चेंज, टेम्परेचर विल चेंज, सच दैट एनआर बाई वी विल रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। सो हमें क्या दिख रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डन है, P तुम्हारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको चेंज करो। हर हर केस में हम पीवी कर्व नहीं बनाएंगे, हर केस में हम कर्व बनाएंगे। ठीक है, डन है। सो यहाँ पे हमें कर्व किसका बनाना है, पी वर्सेस टी का। पीवी कर्व भी बना सकते हैं, बट ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी पी और टी। अगर पीटी कर्व तुम्हें बनाना है तो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। सो ऐसा। डन है, कहने का मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें पीटी कर्व दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्योंकि पीटी कर्व कहने का मतलब इसका स्लोप क्या होगा, पी बाई टी, और इसका स्लोप कांस्टेंट है। पी बाई टी कांस्टेंट होने का मतलब एन आर बाई वी कांस्टेंट है। तो एन और आर तो कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस, बट वॉल्यूम इट्स गैस इज ऑल्सो नॉट गेटिंग कंप्रेस्ड और इट इज नॉट गेटिंग रेयरिफाइड, राइट। उसका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। डन। सो पीटी कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। अगर इसका पीवी कर्व बनाओगे तो कैसा दिखेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो प्रेशर, तुम्हारा कर्व कैसा दिखेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, ऐसा। प्रेशर विल चेंज बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। So pressure is changing, temperature must be changing in that case such that volume is constant. So this one I have drawn as PV curve. ठीक है, now what will be the work done, so if we go on to write work done, work done क्या होता है, work done is P delta V and here dV is 0। क्यों, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, सो वर्क डन क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, 0। ओके, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैं बोल रही थी, हर प्रोसेस में ये सारी चीजें करके देखेंगे एंड वी विल सी कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। डन है, एम यही है। तो चलो देखते हैं। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम लोग फर्स्ट लॉ, सॉरी दिस इज आइसोकोरिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। So here work done is 0. So delta Q will be equal to delta। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है। अब देखो डेल्टा क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, तो तुम लोगों को याद होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था, सीवी। सीवी क्या था तुम्हारा, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। डन है, सो हीट एनर्जी बीइंग गिवन, डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से।
डन। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या आ रहा है, एनसीवी डेल्टा टी। और मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो डेल्टा यू होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है, वो एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि कौन से प्रोसेस से वन से टू पे जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, रास्ता क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया एनसीवी डेल्टा टी। तो कोई भी प्रोसेस हो, आई मीन एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, बीट एनी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस में हम डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा। डेल्टा क्यू को सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू तुम्हारा पाथ फंक्शन होता है। ये तुम्हारा आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ और होगा, एडियाबेटिक में जीरो हो जाता है। सो बेसिकली डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी आया, विच विल बी ट्रू फॉर ऑल द प्रोसेसेस। दिस इज द टेक अवे। डन है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने कर्व को क्रैक किया। डन है। पीटी कर्व बनाया, पीवी कर्व बनाया, या फिर जो भी कर्व दिया हो उसको डील कर सकते हो। उसके बाद वर्क डन हमने निकाला, जीरो आया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके हमें एक डेल्टा यू का यूनिक फॉर्मूला मिल गया, विच वी कैन अप्लाई टू ऑल प्रोसेस। ठीक है, चलो। सो नाउ विल सी आइसोबारिक प्रोसेस। सो सबसे पहले क्या लगाना है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्या होगा, और ये प्रोसेस होता क्या है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, ओके, समवन गिव मी द आंसर। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सो मच। सो हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट। सो लेट्स राइट द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर उसको आप लिखोगे तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो चलो अप्लाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सो वी इक्वल टू nr by p. So for a particular amount of gas, uh, this thing will be constant. For a particular amount, n is constant, r is constant, and pressure is constant for isobaric process. So here we can see v is directly proportional to temperature. यानी कि अगर मुझे कर्व दिया हो v वर्सेस t का, तो हम कर्व कैसा बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना। क्योंकि यहाँ पे v बाई टी क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो v बाई टी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो vt कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज vt कर्व। ओके, प्रेशर पीवी कर्व भी बना सकते हो। पीवी कर्व कैसा दिखेगा, प्रेशर इज कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट है सो प्रेशर का जो वैल्यू हो वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें क्या अप्लाई करना था, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन देखो यहाँ पे पीडीवी, जनरल फॉर्मूला हमें ये पता है पीडीवी, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। सपोज कर लो हमारे पास एक सैंपल है जिसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पी, वॉल्यूम वी1, टेम्परेचर टी1, और फाइनल स्टेट इसका क्या है, प्रेशर तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोबारिक है, तो पी वी2 टी2। सो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा, प्रेशर इज कांस्टेंट तो सिंपली डीवी को लिख लो, V2 माइनस। अगर प्रेशर भी वेरिएबल होता, ये भी वेरिएबल है, तो फिर वॉल्यूम को, प्रेशर को आइदर वॉल्यूम के टर्म में चेंज करना पड़ता या वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में चेंज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, सो सिंपली डीवी निकालो। क्योंकि देखो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, पी डीवी। सो टोटल वर्क डन ऐसे निकालोगे, सो डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर डीवी। और डीवी को क्या लिखोगे, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वी1 से वी2, डीवी का इंटीग्रेशन वी। सो यहाँ पे पी वी, वी1 से वी2, तो यहाँ पे पी वी2 माइनस वी1, तो डायरेक्टली मैंने उसको यहाँ पे लिखा था। डन। सो दिस इज योर पी डीवी, वर्क डन, फॉर्मूला यूज किया, हमारा वर्क डन निकल गया। ठीक है, सो दिस इज योर वर्क डन। नाउ इफ यू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी बताओ। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हो, डेल्टा यू प्लस व्हाट, डब्ल्यू। चलो ये मैंने लिख दिया। डेल्टा क्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी आर गिविंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सो वी कैन राइट हियर सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी।
We can write it, right? So delta Q here can be written as NCP delta T एंड डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं, हर प्रोसेस के लिए ट्रू होगा. सो एनसीवी डेल्टा टी प्लस वर्क डन. डन. सो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है. डन है. एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी plus W. So how this is significant actually? So can you see here one thing? CP term CV से बड़ा दिख रहा है क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी इज एनसीवी डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू. अगर इसको तुम सॉल्व करो तो क्या दिखेगा? एन डेल्टा टी को यहाँ से कॉमन ले लो, तो एन डेल्टा सीपी इज इक्वल टू, मैं क्या करना चाह रही हूँ देखो, तुम लोग कैलकुलेशन सही से करना. एक सेकेंड. देखो व्हाट आई एम डूइंग इज एन एन डेल्टा टी को कॉमन ले रही. एन डेल्टा टी को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? सीपी, है ना? एलएचएस साइड में इधर क्या बचने वाला है? एन डेल्टा टी को अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे बचेगा सीवी प्लस डब्ल्यू बाई एन डेल्टा टी. ठीक है. सो सीपी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? सीवी प्लस समथिंग दिख रहा है ना? सो यहाँ से हमने प्रूफ भी कर दिया कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. थ्योरेटिकली मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि सीपी सीवी से बड़ा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे. अभी यहाँ मैथमेटिक्स से वी कैन सी सीपी इज व्हाट? ग्रेटर देन सीवी. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच ग्रेटर. सो लेट्स सी दैट. ठीक है. तो एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी प्लस हाउ मच? वर्क डन, यानी कि पीडीवी. अब देखो इसको एक काम करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं. पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी. अब एक काम करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों साइड ले लो. पीवी इक्वल टू एनआरटी कर्व के एलएचएस और आरएचएस में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो. पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सो पी, एक बार पी को कांस्टेंट लो, और ये आइसोबारिक प्रोसेस ही है, सो पी, और तब v का स्मॉल चेंज लो. दिस इज हाउ वी डू पार्शियल डिफरेंशिएशन. एक वेरिएबल को पहले कांस्टेंट लेते हैं, फिर दूसरे का चेंज देखते हैं, और उस प्लस करो, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मान लो, और पहले का चेंज लो, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एन आर. यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है टी, सो डेल्टा टी. पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब सबका पार्शियल चेंज. डन है. अब देखो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, है ना? सो डेल्टा पी टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो. सो ये टर्म तो हमारा जीरो है. पी डेल्टा वी यानी कि पी डीवी किसके बराबर है? एन आर डेल्टा टी. सो यहाँ पे पी डीवी को हम क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी. अगर किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करती हूँ, जेड इक्वल टू सपोज करो एक्स वाई है, सो डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू, एक्स को कांस्टेंट लो, वाई का वेरिएबल, फिर वाई को कांस्टेंट लो, एक्स का वेरिएबल. ऐसे करते हैं. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो नाउ हियर एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी प्लस पीडीवी को क्या लिखूंगी मैं? एनआर डेल्टा टी. सो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी गॉन, एन 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 गॉन, and what is remaining here? cp equal to cv plus r. So cp minus cv is equal to r. So cp is greater than cv by how much amount? R amount. That is gas constant. ठीक है. एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? किसी को यहाँ पे डाउट है? एनीवन? फरनाज, डिम्पल, देवानंद. I don't want to pronounce anyone's name incorrectly because I am such a big victim of this. So Isarat, if I'm correct to pronounce it, Chenvi Morbi, Solapur, Nandini, Pragati, Thausia, Suhra. So beautiful names out there, but nobody is replying. जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है? क्लियर है? फरनाज, योर नेम इज ब्यूटीफुल. प्रगति, योर प्रगति. क्लियर है. चलो, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग है. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? ओके, थैंक यू. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. इस प्रोसेस में हम क्या रखने वाले हैं यार? इफ आई एम डूइंग सम मिस्टेक इन राइटिंग वर्ड्स तो प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है.
मुझे क्यों लग रहा है बहुत ही बकवास लिखा है मैंने, बट शायद सही है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे थे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा, पीवी ही कांस्टेंट हो गया, है ना। एन आर पहले से कांस्टेंट था फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, एंड हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड इफ दिस इज कांस्टेंट देन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट। अगर अब हम P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे, व्हाट विल इट लुक लाइक। तो तुम लोग एक ग्राफ पढ़े होगे, अगर कोई भी सपोज कर लो कोई भी एक वेरिएबल जेड है जो कि अ, और ऐसा ऐसा कर्व पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व पढ़ा होगा, जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है। सपोज कर लो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो एक्स इज 1/y, सो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। और ऐसे का एक्स वाई कर्व कैसा होता है, सॉरी वाई और एक्स इधर ले लो। सो दिस कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो एज एक्स विल इंक्रीज, वाई विल व्हाट, decrease. As x will increase, y will decrease. As y will increase, x will decrease. Inversely proportional. So PV curve will look like this. Simple. ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो वर्क डन को निकालते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पी डीवी। डन है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, प्रेशर इज नॉट अ कांस्टेंट हियर, वॉल्यूम डेफिनेटली इज चेंजिंग, वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन, it's not isoporic process, so both are changing, both are variable here, pressure is also changing, dv is also changing. So if we are going to calculate the work done and do the integration, how will it apply here, p को हम बाहर नहीं ले सकते because p is not a constant, so we need to write p in terms of volume। जैसे देखो pv इक्वल टू क्या है, nRT। डन है। और सपोज कर लो जो हमारा सैंपल है गैस का, उसका इनिशियल प्रेशर पी है, P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है। सो फाइनल वॉल्यूम प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा, P2 ले लो, V2 ले लो, टेम्परेचर तो सेम रहेगा T1। डन है, ऐसा कुछ। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने लिखा, पी को क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं एनआर T1/V at any instant, क्योंकि at any instant temperature will be T1 always, and let's say at that instant volume is V, so P can be written as here nR T1/V and dV. So this is this, done. And if we now take the constant outside, so this is nR T1 dV by V, and here volume is changing at what, volume is changing from V1 to V2, है ना। So work done will be how much, nRT1। Now what is the integration of dV by V, you already must be knowing the integration of dx by x, it is equal to ln x, right? So here we will write ln V, and it is V1 say V2. If you are going to write it, nRT1 ln V2 minus ln V1. You know one more thing, that is ln A minus ln B can be written as ln A by B. So here this can be written as nRT1 ln V2 by, ठीक है। So work done can be written as what, in isothermal process nRT temperature ln V2 by V1. This is the work done we are getting, right? This work done can also be written in terms of P1 and P2। कैसे, जैसे देखो nRT ln V2 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन चेक करो, P1 V1 is equal to nRT, and also P2 V2 is equal to nRT। So V2 can be written as nRT by P2, nRT by P2, and V1 can be written as nRT by P1. So this will become nRT, this will get cancelled, ln P1 by P2. So work done in isothermal process is what? Either it is nRT ln V2 by V1, or it is nRT ln P1 by P2. So this is your isothermal process. Now what we need to apply? We need to apply now first law of thermodynamics. So first law को अगर आप apply करोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस व्हाट, वर्क डन। सो सिंपल है, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, डेल्टा Q, सॉरी
अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस दिख गया, देन कोई नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस लेकर चलते। सो डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एन, not, it's not happening at constant pressure or something. So delta q you will write as what? Delta u, oh, sorry, एक सेकेंड, डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी प्लस वर्क डन जो हमारा आया एन आर टी एल एन V2/V1 सपोज मैं लिख रही हूँ। सो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जीरो है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स दिस टर्म विल बी जीरो। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू वर्क डन, राइट? सो एन आर टी एल एन V2/V1। ठीक है, तुम लोगों का एक होमवर्क है विच आई वॉन्ट यू पीपल टू डू। पीवी कर्व जो हमने बनाया, पीवी कर्व जो बनाया वो ऐसा दिखा। तुम्हारा टास्क ये है कि इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है? ये तुम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। टुमारो क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ some questions, one or two questions, and also I will take up this. I will ask with you people how much you have, how many of you have done this, okay? So on this note, I would love to end the class, but if you have any doubt, please let me know. And also please fill this feedback wallet. ठीक है? किसी के पास कोई डाउट है? Anyone? Hosea, you came after a long time, I guess. You're from which JNB? Let's have some conversation. And most of you are from Andhra region, I guess. You know, Ajmala. Okay, my name is Achmala. So there's so much similarity in these two. Means my name and your name. What does it mean? Your name meaning? And also Suhra. This name is so beautiful. I mean, what does it mean? बता सकते हो तुम लोग? एंड ऑल्सो फरनाज का मतलब क्या होता है? नंदिनी, आई नो। चलो फास्ट लेट मी नो। कोई अगर जिसका भी नाम का मतलब पूछा है, किसी को पता है तो प्लीज बताओ मुझे। आई वुड लव टू नो, बट आई विल सर्च ऑल्सो। सुहरा, दिस साउंड्स लाइक सम अरबिक, और आई डोंट नो इफ इट इज हिंदी। You people are from Lakshadweep. Wow, that's amazing place, है ना? That's beautiful place. Hey, invite me someday over there. I would love to come. I love beaches. They give so beautiful vibe, है ना? And sunrise, sunset used to be so beautiful. You people must be thinking कि मैम हमारे लिए तो ये रोज का है, सो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी नेचर बोर नहीं करता है ना? Always welcome. Thank you. I will be coming. Lakshadweep. Okay, great. That place is also very much natural. I mean, fresh air and everything, no pollution, nothing. Yeah, you people are now in class 11th. So maybe by the end of up to 12th, I will be there someday. I hope. I strongly hope. Yeah, thank you. I will be coming. Yeah, Lakshadweep is beautiful. Pragati, you are also from there? I need to plan then. There's so many people from there, right? Wow, amazing. Someday we should sit and talk, है ना? Someday we should have a class of just talking so that we can know each other more. I mean, we can know from which place, which school you people are. It will be more beautiful. Otherwise, we just start the class, we read a lot, and then we end, है ना? Mini koi class 11th. Okay. Okay, great. Nandini, you are also from there? Great. अच्छा, नंदिनी, you're talking about that classes, है ना? वो talking class के बारे में. ठीक है. I will talk with Avanti here, and then we will arrange one class. We will have lots of conversation. We will also talk about our hobbies and everything, and we will get engaged in a very healthy and funny conversation. JNV mini koi. It is. It is. Where? It is. 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 Where?
अच्छा, दैट इज इन लक्षद्वीप। मैं भी डम हो गई हूँ। या, आई गॉट यू पीपल। या, लक्षद्वीप, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू यार। It's so good to listen from you people. JNV Lakshadweep. I'm not going to forget this name now. I will keep it on my list. ठीक है, I will be coming to you people. चलो, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर क्लास में, ठीक है। आई विल मेक सम टी एंड हैव टी। तुम लोग भी स्कूल में स्नैक्स लो, एंजॉय करो, बातें करो और पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। Visakhapatnam, Pragati. Yeah, I will come. Vizag I have went once, so that's actually beautiful place. That is also a place of cluster of beaches, right? There's so many, and that place is really so clean and all. Vizag, it's good place. It is also good one. Yes, Pragati. चलो, मैं ना एक काम करती हूँ, इंडिया भ्रमण पे निकल जाती हूँ। सो आई विल कीप ऑन विजिटिंग टू ऑल प्लेसेस, इट विल बी मोर गुड, है ना। चलो, इट्स सो गुड टॉकिंग विथ एवरीवन। सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी किया करो, ठीक है। और मेरा नाम अक्षमाला है। अक्षमाला, AKSHMALA। यस, AKSHMALA। दैट इज माई नेम। चलो, मैं टाइप कर लेती हूँ। बहुत दिन बाद किसी ने नाम पूछा है, सो इट्स ग्रेट फीलिंग। आई एम फ्रॉम बिहार। थैंक यू। योर नेम इज देवानंद। देव आनंद मैंने बोल दिया। अच्छा, ए बीच में से मिस हो गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देवानंद, राइट? देवानंद। देवानंद, am I correct? I mean, there is something wrong with my pronunciation, I guess, है ना? It's not coming exactly. देवानंद, now I am correct. Yes. Thank you. चलो, डन है। डन है। So much I got to know about you people. That's great. ठीक है। चलो ठीक है, इसी नोट पे we should end the class. We will meet tomorrow again, and we will have classes, conversation, so much. So let's say bye bye. Take care of yourself. ठीक है, bye.